Welcome to Aswani classes coordinate geometry part 7. In this part we are going to discuss orthocenter and related result. So first of all, let us see what is orthocenter. There is a triangle, any triangle, okay, ABC suppose. If we draw altitude you know, from A, draw a perpendicular on this side and this way. From B, draw a perpendicular on the opposite side, and from C, draw a perpendicular on the opposite side. These perpendiculars are called altitudes. All the altitudes always meet at a point. ये altitude सब हमेशा एक पॉइंट पर मीट करेगा, चाहे आप जैसा ट्रायंगल ले लीजिए. This meeting point of the altitudes is called orthocenter, and we denote it, let us suppose, O dash. Understand what is orthocenter? Point of intersection of the altitudes of a triangle is called its orthocenter. If there is a right angle triangle, what will be its orthocenter? Draw a perpendicular, suppose it is ABC. Draw a perpendicular from, this is right angle triangle, so this side itself is the perpendicular. From C, this side is itself is the perpendicular, so this is the meeting point of the altitude. इसका भी meeting point जो होगा यहीं से पास करेगा. So in case of right angle triangle, this vertices where 90 degrees there is the orthocenter of the triangle. ये 90 डिग्री जहां बन रहा है ना, वो जो वर्टिसेस है वही आपका ऑर्थोसेंटर होगा. तो आप समझे ऑर्थोसेंटर क्या है. एक होता है सरकम सेंटर. सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर is the point of intersection of perpendicular bisectors of the sides of a triangle. एक ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ये एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग अलग चीज है. एल्टीट्यूड मतलब वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो वो है एल्टीट्यूड. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये साइड है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग लेते हैं ना, जैसे ये लाइन सेगमेंट है. वी कीप आवर कंपास हियर एंड टेक द आर्क मोर देन हाफ से ज्यादा लेके ऐसे इधर कट करेंगे, फिर कंपास को यहां रखते हैं, ऐसे कट करते हैं. ये आता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इस तरह से जूनियर क्लासेस में हम लोग निकलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर होगा और दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. समझिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अलग है. एल्टीट्यूड मतलब यहां से परपेंडिकुलर खींचेंगे तब वो एल्टीट्यूड होगा. दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सिमिलरली यू कैन टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड. इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्ट करेगा इसको. उसी तरह से इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे. तो ऑल दी थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ऑल्सो meet at a point, and this point is called circumcenter of the triangle. इसको क्या बोलते हैं? Circumcenter of the triangle. Let us denote it by O. So I hope you have understood what does it mean circumcenter, what does it mean orthocenter. Now secondly, what is orthocenter? It is point of intersection of perpendicular bisector of the sides. Now if there is a circle passing through the vertices of a triangle,
if there is a circle passing through the vertices of a triangle. Then what will be the circumcenter? Circumcenter means it is perpendicular meeting point of the perpendicular bisectors of the sides. ऐसे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां मीट करेगा वो सर्कमसेंटर होगा. ऑल्सो वी नो इफ सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन दिस इज कॉर्ड ऑफ द सर्कल. ये फिर सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा और कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना उस सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा. perpendicular bisector of any chord of a circle passing through the center of the circle. कोई भी उसका chord ले लीजिए, कोई सर्कल लीजिए, इसका सेंटर है ये, इसका एक chord लीजिए. chord का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो सर्कल के सेंटर से ही पास करेगा. ये सर्कल चैप्टर में डिस्कस किया गया है क्लास 10 में. It means this will pass through the center. Again, if we take perpendicular bisector of this will also pass through the center of the circle, and hence the circumcenter of the triangle coincide with the center of the circle. तो सर्कल का सेंटर ही सर्कमसेंटर होगा. समझे? ये फर्स्ट जो वीडियो है पार्ट 1 में सर्कल सेंटर के ऊपर एक क्वेश्चन बनाया गया था. If there is a circle passing through the vertices of a triangle, then center of the circle, सर्कल का जो सेंटर होगा वही होगा circumcenter of the triangle. Okay. And if O is the circumcenter of the triangle, तो वो सर्कल का जो सेंटर है उसके साथ कॉन्साइड कर जाएगा. सर्कल का सेंटर ही ट्रायंगल का सर्कमसेंटर होगा. समझ गए बात? अब ये सर्कमसेंटर है तो सर्कल का सेंटर है तो फिर ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगे. ये डिस्टेंस इक्वल होगा. इफ ऑल द 3 वर्टिसेस आर गिवन, मान लीजिए ये तीनों वर्टिसेस दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, इसके जगह पर कोई नंबर दिया हुआ रहेगा x3 y3. तीनों वर्टिसेस अगर दिया हुआ हो तो हम लोग उस सर्कल का उस ट्रायंगल का सर्कमसेंटर निकाल सकते हैं. तो मान लीजिए ए बी ए सी है. ए बी सी विद द ट्रायंगल एंड x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल एंड वी सपोज O be the circumcenter of the triangle, that will be center of the circle. And if O is the circumcenter, then OA will be equal to OB will be equal to OC. Is not it? तो एक बार ये दोनों को इक्वल लेंगे, OA इक्वल टू OB, और वहां से एक इक्वेशन आएगा, लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ये तीनों पॉइंट गिवन होगा, इसको हम लोग XY ले लेंगे सर्कमसेंटर को, और OA इक्वल टू OB लिख के सिंप्लीफाई करेंगे. दैट विल गिव्स यू ए लीनियर इक्वेशन इन XY. अगेन वी कैन टेक AO इक्वल टू OC, ये दोनों को भी ले सकते हैं. एक बार लेंगे AO इक्वल टू BO, फिर एक बार इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, BO इक्वल टू CO. यहां से एक लीनियर इक्वेशन आएगा, यहां से एक लीनियर इक्वेशन आएगा. फिर दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके X और Y का वैल्यू निकाल लेंगे. वो होगा इस सर्कमसेंटर का कोऑर्डिनेट, मीन्स ट्रायंगल का सर्कमसेंटर. इन दिस वे वी कैन फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल. वन प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व्ड इन पार्ट 1 आई थिंक, where all the 3 vertices were part 1 or part 2, where all the 3 vertices were given and we calculated circumcenter of the triangle. तो सर्कमसेंटर तो निकाल सकते हैं, ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है तो इस तरह से प्रोसेस से हम लोग सर्कमसेंटर निकालेंगे. इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं. फॉर्मूला है, ज्यादा फॉर्मूला भी याद नहीं रखना है, जो ऐसे बन रहा है तो उसके लिए अलग से फॉर्मूला ड्राइव करने की जरूरत. फॉर्मूला भी ड्राइव किया हुआ है बुक्स में, लेकिन चलिए इस तरह से हम लोग इसका सर्कमसेंटर निकाल लेंगे. नाउ ऑर्थोसेंटर में क्या कीजिएगा, इतना फॉर्मूला याद रखें.
ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है कि ये एल्टीट्यूड्स, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इफ ऑल द थ्री वर्टिसेस आर गिवन, जैसे तीनों वर्टिसेस अगर दिया हुआ है ट्रायंगल का, x2 y2 x3 y3 ऐसा, तो ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड है मतलब ए से पास करता है, ए से परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग। वी फाइंड इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड। दिस finding equation of the altitude is not in the portion of class 10. क्लास 10 में इक्वेशन वगैरह निकालना नहीं है, तो क्लास 10 में ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आएगा भी नहीं। 11 में इस चैप्टर के बाद नेक्स्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर है पढ़ेंगे, वहां हम लोग सीखेंगे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना और इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। उसी तरह से फिर ये जो दूसरा एल्टीट्यूड है ना, इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। ये एक लीनियर इक्वेशन आएगा, लाइन का इक्वेशन हमेशा लीनियर इक्वेशन होता है। तो वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स दैट विल गिव्स यू ए लीनियर इक्वेशन। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड्स and then by solving the equation of the altitudes we can get the ortho center। तो ये क्लास 11 में नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, तो वहां लाइन का इक्वेशन निकाल के आपको बताएंगे कि कैसे ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। 10th में जरूरत भी नहीं है ये, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं ड्राइव करना है, सर्कम सेंटर के लिए भी अलग से कोई फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है। सिर्फ सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला है x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3, and we already read formula for in center। in center क्या था? What is in center? Is ortho center, circum center, एक है in center। in center we discussed in the last video। point of intersection of the angle bisector, इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज मीट एट ए पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। इफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, then its in center is ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, and y coordinate of the in center ay1 plus by2 plus cy3 by a plus b plus c, where a, b, c are the sides of the triangle. This we already discussed in part 6, already drive the formula. Okay, so you have understood ortho center. How can we find ortho center? That will be done in the next chapter. Circum center, in center we have already derived formula for in center, and centroid, एक आता है centroid। centroid क्या होता है? It is point of intersection of the medians of the triangle। median किसको बोलते हैं? vertex, और इसका middle point का opposite side का middle point को मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं median। similarly there may be another median, this side also one median। all the medians of a triangle also meet at a point, and that meeting point is called centroid of the triangle। it is generally written as G। we already derived the formula for finding centroid of a triangle। if x1 y1 x2 y2 x3 y3 are the vertices of a triangle, then coordinate of the centroid x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3। it is already discussed in part 5। okay, so these things we have already discussed: in center, centroid, ortho center, circum center। okay, now the main purpose is today
to discuss a relation among these points. ये जो ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर है, इनके बीच में एक रिलेशन है और उस रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन आपको बनाना है. ठीक है, ये जो 3 पॉइंट है, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और ये नहीं, ये सेंट्रॉइड, ऑलवेज लाई इन ए स्ट्रेट लाइन फॉर ए जनरल ट्रायंगल. कोई अगर जनरल ट्रायंगल है तो ये ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर ओ डैश, सर्कम सेंटर ओ, सेंट्रॉइड जी, ऑलवेज लाई इन ए लाइन. ये एक लाइन में आएगा. चलिए इसको मिटाते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं. एंड ये तीनों एक लाइन में होगा. और ये जो सेंट्रॉइड है ना, सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1. ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, सॉरी सर्कम सेंटर का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसको सेंट्रॉइड 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है. और ये तीनों हमेशा कोलिनियर होते हैं. ये रिजल्ट आपको जानना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. ये 3 पॉइंट, पहला ओ डैश क्या होता है, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर. थोड़ा और बढ़ाइए. ओ ये है सर्कम सेंटर और जी सेंट्रॉइड. These 3 points always lie in a straight line. आपको जानना है कि ये ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा. एंड दिस जी डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ओ डैश ओ इन द रेशियो 2:1. 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा. मतलब ओ डैश जी बाई ओ जी, दिस रेशियो विल बी योर 2/1. G divides O dash in the ratio 2:1. Okay. So if centroid given, coordinate of centroid given, coordinate of circumcenter given, can you find coordinate of centroid? ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे बिकॉज सेंट्रॉइड डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1. ओके, इफ सेंट्रॉइड डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1 देन वी कैन से सर्कम सेंटर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ओ डैश जी इन द रेशियो, यहां से यहां तक कितना होगा 3 और यहां से यहां तक 1. तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कम सेंटर डिवाइड करेगा ओजी को इन द रेशियो 3:1. नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, लेकिन डिवाइड तो करेगा ना. ओ डैश मीन्स ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ जीओ इन द रेशियो, यहां से लेके यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2. सो वी कैन से ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 3:2. ये 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड करेगा इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को. ये 3 और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को, और ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग को. तो इन दिस वे 3 पॉइंट्स आर देयर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर. Out of these 3 points, if coordinate of any point given,
ये सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी 2 पॉइंट गिवन, ये 3 पॉइंट हुआ ना, ओ डैश जी और ओ, ये 3 में से अगर कोई 2 दिया हुआ है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड गिवन, यू कैन फाइंड सर्कम सेंटर। इफ सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर गिवन, यू कैन फाइंड सेंट्रॉइड। इफ सेंट्रॉइड and ortho center given, you can find circum center. So this result is very, very important, and by using these results, out of these 3 points, if any 2 are given, third can be calculated. So let us see one problem based on this result. This is very important result. एक क्वेश्चन देखिए, इफ द सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, क्वेश्चन इज इफ द सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर of a triangle R 3 3 6 2 3 3 and 6 2 respectively, find the ortho center. Find the ortho center. This is what is your question. Try to understand it. जब भी ये सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का बात हो तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए ना, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर. ओके, सेंट्रॉइड इज गिवन 3 3 and circum center is given 6 2. You have to find ortho center. Question समझो. Let it be xy. So you have to find the value of xy. And you know these 3 are always collinear and this part is double of this part. ये अगर 1 है तो ये 2 होगा. Means this is the point which divides in the ratio 3a. This is the point which divides in the ratio 2:1. So can you find the values of x and y? Or you can say this point divides the line joining of these two externally in the ratio, यहां से आप लिख सकते हैं o dash o by o dash g equal to o dash o कितना होगा तो 3 और o dash g कितना होगा 2. हम लोग ये बोल सकते हैं कि o dash डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ g एंड o dash इन द रेशियो 3:2 एक्सटर्नली हो जाएगा यहाँ. ये कर सकते हैं या फिर सीधा यही यूज कर लीजिए, g डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1 इंटरनली. देखिए g पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 3 और x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. ये है x1 y1 x2 y2. ये है mx2 x2 मीन्स ये 6 प्लस nx1 n मतलब 1 x1 मीन्स x बाई m प्लस n. ये हो जाएगा, यहां से आपका x निकल जाएगा. निकलते हैं चलिए. ये हो जाएगा 12 प्लस x इक्वल टू दिस इज 3 इंटू 3 9. सो x विल कम 9 माइनस 12 3.
and y coordinate of the centroid, y coordinate of the centroid is 3. Okay, this, and y coordinate is m y2. This is m y2, x1 y1 x2 y2, m y2 plus n y1, this is n y1, y1 means y by m plus n. यहाँ से आप y निकाल सकते हैं. 4 plus y equal to, this is 3 into 3, 9. So y will be 9 minus 4, 5. So minus 3, 5. Minus 3, 5 is this centroid. In this way you can find. Or secondly, this can also be used, that O dash divide GO externally in the ratio 3:2. 3:2 in this case it will be, and same answer will come. Let us find in this way and see the same answer is coming or not. Now we use this ratio O dash O by O dash G equal to 3/2. Here O dash divide GO in the ratio 3:2. By using this also we can find the coordinate of O dash. But here one thing you should know carefully. Let us see. Now let me rub the question. Question is already there. We know externally dividing points means formula for externally dividing point. What was the formula? Let us see once again. Suppose one point is your x1 y1, this point, and here is one point is suppose x2 y2. Okay, and there is a point, this is suppose A, this is B, there is a point P which is outside of the line joining AB. Okay, such that distance of P from A is suppose m, and distance of P from B is suppose n. Then we say P divides the line joining AB in the ratio m:n. But there is very important thing what you have to understand. Now if you want to write coordinate of P, then coordinate of P is mx2 plus mx2 minus nx1 by m minus n. In case of external division, here P divides externally in the ratio m:n. See here, PA by PB is equal to m by n, means P divides externally in the ratio m:n. Then coordinate of P is mx2 minus nx1 by m minus n, my2 minus ny1 by m minus n. But how will we use this formula? mx2, which one is, this is x1 y1 x2 y2. M is distance of P from x1 y1. Okay, then we are using mx2, distance of this point is m, into x coordinate of second point mx2 minus n. N is distance of P point from this, so we use nx1, mx2 minus nx1, mx2 minus nx1 by m minus n. Once again try to understand. देखिए P पॉइंट का इससे डिस्टेंस m है, तो m इसका x कोऑर्डिनेट है, फिर माइनस P पॉइंट का जब इससे डिस्टेंस ले रहे हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट है बाय m माइनस n. सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट m
m तो p पॉइंट का a से डिस्टेंस है ना, तो b का y कोऑर्डिनेट my2 माइनस ny1 by m minus n. Okay, now here the same concept we use. Find coordinate of o dash. o dash का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है. o dash divide go externally in the ratio 3:2. इसका यहां से डिस्टेंस 3 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 है, तो g डैश डिवाइड go इन द रेशियो 3:2. तो g डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है. यहां m कितना हुआ, ये m मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, ये वाला नहीं, दैट इज योर 3. यहां m की जगह पर कर लीजिए आप 3, और n है आपका ये 2, है ना. तो m देखिए ध्यान से, m x2 होता है. m मीन्स ये 3, ये कहां से डिस्टेंस है, o डैश का o से डिस्टेंस है, तो इसका लेंगे हम लोग सेकंड कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट लेंगे. देखिए m इसका a से डिस्टेंस था ना m, तो m x2 हुआ, दूसरे का x कोऑर्डिनेट हुआ. इसका यहां से डिस्टेंस है 3, तो ये हो गया आपका m, तो ये लेना पड़ेगा x2, ये वाला m x2 ऐसा, माइनस n क्या है, इसका यहां से डिस्टेंस है n, तो फिर इस यहां से डिस्टेंस हो ना, इसका x कोऑर्डिनेट लेंगे 6. फिर से देखिए, o डैश पॉइंट का o से डिस्टेंस है 3, m के जगह पर है, और o डैश का g से डिस्टेंस है 2, o n के जगह पर है. अब ये दोनों x1 y1 x2 y2 लेते हैं ना, तो जैसे o डैश पॉइंट का यहां से डिस्टेंस लिए m ना, तो इस पॉइंट का नहीं है, दूसरा पॉइंट ये होगा x2 y2, ये हो जाएगा आपका x1 y1. फिर से देख लीजिए भाई इसको, ये बहुत कंफ्यूजन होता है. ये 3 3 है और दूसरा पॉइंट है 6 2. ठीक है, इधर आउटसाइड में आपका पॉइंट है o डैश, इसका यहां तक का डिस्टेंस है 3 और यहां तक का डिस्टेंस है 2. तो जब 3 लेंगे तो इसका ये होगा x2, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2, और जब 2 लेंगे तो फिर ये 6 लेंगे, m x2 माइनस n x1 बाई m माइनस n, ये तो ठीक है 3 माइनस 2, समझे. उसी तरह से फिर y में जब ये 3 लेंगे, मैंने यहां से डिस्टेंस ले लिए, तो इसका y लेंगे, फिर जब 2 लेंगे तो ये वाला y लेंगे. राइट, ये चीज को आप समझिए, नहीं तो बहुत जल्दी गलत हो जाता है. ये हो गया m x2. ठीक है, फॉर्मूला में x2 होता है, तो x1 y1 किसको लेंगे, x2 y2 किसको लेंगे, ये प्रॉब्लम. हम लोग इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे भी ले सकते थे, इसको x1 y1 x2 y2 ऐसे भी ले सकते हैं, तो किसको लेंगे. ऐसे 3 लिए ना, 3 तो इसका डिस्टेंस हो गया, इसका y कोऑर्डिनेट तो 3 ही है, माइनस 2 लिए, ये डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस लिए, तो इसका y कोऑर्डिनेट लेंगे. ये हो गया my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n. m माइनस n मीन्स ये होगा आपका o पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सॉरी o डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट. दैट इज o डैश 9 माइनस 12, कितना होगा 9 माइनस 12 माइनस 3, नीचे तो 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, ये 9 माइनस 4 5. तो o डैश पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, वही जो पहले आया था, आंसर तो वही आएगा -3 5. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर, centroid and circumcenter was given, we have calculated orthocenter. Okay, this question is over. One more result you should know. एक दो और रिजल्ट है जो आपको जरूरत पड़ता है.
वो आप देख लीजिए। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका ये जो राइट एंगल जहां है ना, ये पॉइंट इसका ऑर्थो सेंटर होता है, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। यहां से एल्टीट्यूड यही खुद हो गया, यहां से इस पर एल्टीट्यूड ये खुद हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड है, तो ये ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। एंड दिस इज हाइपोटेनस, मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का जो मिडिल पॉइंट होगा, we know from basic geometry then that the middle point of the hypotenuse is always equidistant from all the three vertices. राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का जो मिडिल पॉइंट है वो तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। ये डिस्टेंस जितना होगा ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये सिंपल ज्योमेट्री है, ठीक है। तब ये पॉइंट यहां से और यहां से तीनों जगह से बराबर दूरी पर है, तो इसको अगर सेंटर लें और इसको रेडियस लें तो एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। बाय टेकिंग दिस पॉइंट एज सेंटर, दिस और दिस एज रेडियस, वी कैन ड्रॉ ए सर्कल, ओके। एंड दिस सर्कल विल बी सर्कम सर्कल, तीनों वर्टिसेस से पास करना ना, तो ये सर्कम सर्कल है, और ये जो पॉइंट है ये आपका होगा सर्कम सेंटर। तो कहने का मतलब है अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके तीनों वर्टिसेस से अगर एक सर्कल पास कर रहा है मतलब सर्कम सर्कल है, तो इस सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर जो है हाइपोटेनस का मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है। मिडिल पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस विल बी द सर्कम सेंटर इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये बोलना है, राइट। अच्छा, ये जैसे बताया गया कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ये तीनों कोलिनियर होते हैं, ठीक है। और उसमें सेंट्रॉइड जो है वो ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के लाइन ज्वाइनिंग को 2:1 के रेशियो में डिवाइड भी करता है। इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलैटरल समझते हैं ना, तीनों साइड इक्वल होगा। इन केस ऑफ इक्विलैटरल all these point will coincide. इक्विलैटरल के केस में आपका ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड, ये तीनों एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाएगा, ठीक। तो इक्विलैटरल केस के लिए नहीं है ये जो सेंट्रॉइड डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को, दिस इज फॉर जनरल ट्रायंगल। इन केस ऑफ पार्टिकुलर equilateral triangle, all the points will coincide. So in this video keep this much. In the next video we see how to derive area of any triangle, area of a triangle whose vertices are given, and problem based on area of triangles. So in this video this much. Thank you for watching.